Today we'll do Coulomb's law in vector form. Uh, just you see here, we have taken two point charges q1 and q2. Their position vector from the origin is r1, and the position vector of another charge q2 is r2. The point charge q1 lies at point A and point charge q2 lies at point B. So briefly you look at here, you are given R1 is a position vector and this one is OA. R2 is position vector, this is given OB. And you have to find here AB. AB you have to find. So in vector form, if you write here AB, this can be written as R12 AB. That means its direction is from point A to point B. So we are writing R12 and its magnitude is R. This is the magnitude of AB, and the magnitude of opposite of AB is BA, and in vector form if you write down, this one is vector R21 and its magnitude is also same. AB का जो length है that represent the magnitude, तो AB और BA का जो length है it is same. So the magnitude of AB is R and the magnitude of BA is R again. So this one is magnitude. But one thing you have to understand here, that the AB and BA, their magnitude is same, but their direction is opposite. So that's why we are writing what? The R12 vector is a minus of R21 vector. R12, R21. In magnitude they are equal, but their direction are opposite. Okay. तो ये बेसिक्स है, इसको आप ध्यान में रखें. अब फिर आए हम इसी डायग्राम से काम करें कि सबसे पहले हम ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन देखें. तो वेक्टर ओ ए, that means you start from O goes to A, then vector AB starts from A goes to B, and plus vector BO, because it started initially from O and finally you reach to O, so the net displacement is 0. So OA plus AB plus BO is 0. अब देखो यहां से यहां चले, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां गए. So you have started from O and finally reached to point O. So the sum of all these three will be 0. Now what are given? You are given OA. So for OA you can write down, this is vector R1. AB you don't know, AB we have to calculate, plus you are given OB, but here is BO. So you have to write down here minus R2. R2 is actually OB, and since it is a BO, so you have to put here minus. So this is equal to 0. So what is AB? So vector AB is equal to, if you do this one, you will understand well. This is equal to vector R2 minus vector R1. So this is equation first you can consider. So if you know AB, so naturally you know BA also. So what is BA? So vector BA is equal to just exactly opposite. This one is R1 minus R2. So this you have to, but the magnitude in both cases are same. The AB, BA, the length is same, so magnitude is same, but the only difference that you are finding here is
in the direction. Now you come here, we'll come to the Coulomb's law actually. So first we'll write down force on charge Q1 due to charge Q2. So this we have to make here. Force on charge Q1 due to charge Q2. So this one you can write on F12. Okay, so first we'll write down magnitude. F12 is what? 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Okay, Q1 Q2 by R square into vector. So whatever vector, what is the direction? This becomes magnitude actually. तो इस पर जो फोर्स लगेगा वह किधर की तरफ होगा डायरेक्शन, तो इसको ध्यान से देखो. तो सिंस दे आर आइडेंटिकल, सो दे आर लाइक चार्जेस, so there will be force of repulsion. So the direction of force is this one, F12. तो अगर आपसे पूछे AB की तरफ है कि BA की तरफ है, so what is the direction AB और BA, तो आपको आंसर मिलेगा BA. और BA को हम अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखें R21 लिख सकते हैं. ओके, इसको क्या लिख सकते हैं? R21, यानी 2 से 1 के तरफ. सो दिस इज, इसको हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं. सो अनदर वे यू कैन राइट डाउन. सो R21, देखो वेक्टर AB को हम R12 भी बोलते थे, और वेक्टर BA को हम बोलते हैं R21 वेक्टर. सो दिस इज R12 वेक्टर AB 1 से 2, R21 वेक्टर इज BA. अब देखो इसका डायरेक्शन किधर है? R21. तो R21 ये ध्यान में रखना. अब इसकी मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एक्चुअली? तो मैग्नीट्यूड तो R ही है, तो R को हम बहुत फॉर्म में लिख सकते हैं. सो R कैन बी रिटन एज इन टू फॉर्म्स. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R21 और R12. तो R21 को आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ R12 और मैग्नीट्यूड ऑफ R21. सो दिस कैन बी रिटन एज R12 को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1, R12 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1, और R21 को हम लिख सकते हैं वेक्टर R1 माइनस R2. ओके, so what is the fact here? So F12 can be written as F12 can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R21 लिखें. तो R21 किसके बराबर था? R21, तो R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1. तो आप लिख सकते हो यहाँ पे R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R21 कैप. This can be written, no problem here. Okay, sorry, it is not vector, it is a cap. हाँ, वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर. एक और तरीका है, जिसको हम लिखें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर. R2 माइनस R1 ना लिख करके R21 वेक्टर लिखो, इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे लिख दो R21 वेक्टर. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा Q. तो ये दो चीज ध्यान में रखना. अगर आप कैप के टर्म में डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर के टर्म में डायरेक्शन लिखते हो, तब तो आपके डिनोमिनेटर में स्क्वायर ही रहेगा. अगर इसको हम वेक्टर के डायरेक्शन में लिखते हैं तो आप इसको ऐसे लिख डालोगे. सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म of Coulomb's law. Similarly, you can write here F21 also. तो F21 को भी आप लिखो. What can be done here? F21.
Yani force on charge Q2 due to charge Q1. So you look here. So vector F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by यहाँ पे लिखना R12 का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर और इसका डायरेक्शन होगा R12 कैप। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप ऐसे भी लिखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 का क्यूब into vector R12. Okay, so these are the facts that you have to understand. But one thing I'd like to make clear here, जो F21 है उसका डायरेक्शन होता है R12 की तरफ और F12 का डायरेक्शन होता है R21 की तरफ। तो आप लिख सकते हो सिंस R21 is opposite of R12, so F12 is minus of F21. Okay, so remember Newton's third law of motion. Action and reaction forces are equal and opposite. ये आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको पता ही है कि फोर्स दो डिफरेंट बॉडी पे होना चाहिए, नेचर ऑफ फोर्स सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो दिस ऑल आर द कंडीशन फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, नाउ दिस, इसको एक बार आप फिर से मतलब इसको नोट बनाना और फिर इसको चेक करो कि आप इसमें कितना समझे। दिस इज द वन पार्ट दैट आई विल डी। जो अगला हमारा पार्ट है वो है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, electric field. Now Coulomb's law is over. Electric field, देखो इसकी जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और कूलम्स लॉ में एक चीज ध्यान रखना, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दिस इज एक्टिंग फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिस एक्ट्स फॉर पॉइंट मास। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो कूलम्स लॉ है, वो पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। तो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज हियर Q। ओके, अब क्या करो कि इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे दैट यू प्लेस हियर अनदर चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा Q। नाम है इसका टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज हमने प्लेस किया कितने दूरी पर, R दूरी पर। टेस्ट चार्ज के बारे में एक जान लो कि टेस्ट चार्ज इज एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज। तो इससे छोटा हो ही नहीं सकता, बहुत ही छोटा चार्ज है जिसका खुद का इम्पैक्ट हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। यानी खुद का जो फील्ड होगा, क्योंकि इस फील्ड की ही बारे में बात कर रहे हैं, तो खुद का जो इम्पैक्ट है वो इसके छोटे मैग्नीट्यूड के कारण हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग स्मॉल चार्ज एट पॉइंट आर। बाय द वे चार्ज तो है, तो इफ इट इज चार्ज इज देयर, सो देयर इज अ फोर्स एक्ट्स। तो फोर्स का वैल्यू है कितना होगा, वो फोर्स दोनों पे लगता है, ऐसा नहीं है कि उसी पे लगेगा, इस पर भी लगेगा। द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स
on test charge. How much? See, force on test charge F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2. तो Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह है डेल्टा Q और divided by the square of the distance. This is from Coulomb's law. We have not done anything special here. This is from Coulomb's law that you can do here. That the F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q delta Q divided by R square. चलो अब ये जो फोर्स है ये दोनों चार्ज पे लगेगा. This force will act on Q as well as delta Q also in equal magnitude, but the direction will be opposite. क्यों opposite होगा? क्योंकि इसका नेचर और इसका नेचर सेम है. अब चलो तो हम इसी बात को लिखते हैं कि डेल्टा Q experiences force F. तो डेल्टा Q फोर्स F एक्सपीरियंस करता है. तो अगर इस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज अगर हम रख देते तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता? इफ 1 कूलम चार्ज, nothing is written, this means a positive 1 coulomb. The plus 1 coulomb charge, if it is placed here, how much force will act? तो आप ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, यूनिटरी थ्योरी. इतना पे इतना तो 1 पे कितना बताओ? तो F अपॉन डेल्टा Q. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो आपने बोलना इसमें, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या कभी कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं. दिस इज व्हाट कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, सर्टेन पॉइंट P. ओके, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो बहुत आसान, पहले तो फॉर्मूला लिख लो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी पहले ये लिखो, F बाई डेल्टा Q. इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन डेल्टा Q. ओके, अब अभी हम डिफाइन करेंगे कि आपसे पूछेगा व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एनीवे दोनों एक ही है, या कभी कभी शॉर्ट में पूछ देता है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो इस फॉर्मूला को देख के पहले यूनिट बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम. सो न्यूटन पर कूलम is the unit of strength of electric field. This is one unit. Another unit also you will find. एक तो ये हुआ. अब चलिए इसकी डेफिनेशन हम करें. तो डेफिनेशन करने में क्या होगा आप देखो. तो डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप नोट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक पॉइंट पर चेंज हो जाएगा, ठीक है. The strength of electric field at a point is defined as force experienced by unit positive charge at that point. यानी उस पॉइंट पर अगर हम 1 कूलम चार्ज रख दे तो उस पर जितना फोर्स लगेगा उसी को हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. दिस इज अ वे टू अंडरस्टैंड. ओके, क्या बोले, फिर से आप सुन लें कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्ट्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज और प्लस 1 कूलम चार्ज, जो भी ध्यान रहे, placed at that point. If at this point, if you place plus 1 coulomb charge, whatever force experienced is called strength of
electric field. So this is the thing that you have to remember. हमेशा याद रखना, 1 कूलम चार्ज किसी पॉइंट पे रखो, उस पर जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो प्लीज यू लुक एट हियर. तो इसको हम कैसे करते हैं वो ध्यान दें. तो डिफाइन, तो डेफिनेशन आपने लिख लिया, यूनिट भी लिख लिया. अब देखो, अब f का वैल्यू रखो. तो जस्ट नाउ वी हैव ड्रॉन हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f. तो E इज इक्वल टू, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, f की जगह हम लिखेंगे 1/4πε0 q इंटू डेल्टा क्यू बाई आर स्क्वायर. ये हुआ f की जगह, एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू. तो यहां डिवाइड कर दो डेल्टा क्यू से. तो डेल्टा क्यू इज बीइंग cancelled. So what is the formula of electric field? Due to a point charge is 1/4πε0 q divided by r square. So this is formula for strength of electric field at a point due to a point charge. किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं. You place here 1 कूलम चार्ज, whatever force acts, तो कितना फोर्स लगेगा 1 कूलम चार्ज पे, इतना. ठीक. तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखो, ये R डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि R का वैल्यू आप चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होगा. अगर आप पास लाओगे यानी R का वैल्यू कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा. इट्स ओके. तो चार्ज के जितना पास पॉइंट लोगे stronger electric field मिलेगा. But as you go away from the charge, the electric field weakens. So this is what about electric field. अब रहा एक दो चीज ध्यान देने की बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी. ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. So write down, it is a vector quantity. ठीक है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर तो डायरेक्शन क्या होगा. तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसी को लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/4πε0. पहले तो मैग्नीट्यूड लिख दें, q अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे दे दिया आर कैप. दिस इज द यूनिट वेक्टर शोइंग द डायरेक्शन. तो एक्चुअली डायरेक्शन कैसे पता करते हैं वो ध्यान दें. तो मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज है और आपसे पूछे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, ये पॉइंट. तो हम इमेजिन करेंगे, यहाँ पे इमेजिन क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रख दें तो वो किधर जाएगा. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंडिंग मोशन. तो अगर +1 कूलम चार्ज रखे तो इसके बीच कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सन का. तो टेंडिंग मोशन किधर होगा, इधर की तरफ होगा. So this will be the direction of electric field. तो बहुत सिंपल तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड का. कहीं भी डायरेक्शन पता करना हो तो एक सेकंड के लिए रुक जाओ, सोचो कि उस पॉइंट पर अगर हम +1 कूलम चार्ज रखे तो ये +1 कूलम चार्ज का मूवमेंट किधर के तरफ होगा. तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल है और कुछ नहीं, ध्यान रखना. अब ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल अब ले लो. ठीक है. मान लो कि ये -q चार्ज आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा. बहुत सिंपल है. सोचो कि हम यहाँ पे +1 कूलम चार्ज अगर रखें तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन. किधर जाएगा +1 कूलम, तो जिधर जाएगा ये इधर की तरफ अट्रैक्ट ना होगा. तो अट्रैक्ट होगा तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा. तो हम बताएंगे कि the direction of electric field is towards the -q charge. एक और चीज आप देख लो, एक और डायरेक्शन आप बताओ. मान लो कि आपके पास ये एक लाइन चार्ज है, इसे लाइन ऐसे ऐसे सोच के देखना. और इस पॉइंट पर बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, किधर की तरफ होगा.
तो मान लो कि आप इसको इसको ठीक बीच में रखो, ठीक बीच में रखना है, साइड में रखने से फिर थोड़ा गड़बड़ होगा, इसको बीच में रखते हैं सुविधा के लिए। तो +1 कूलम चार्ज यहाँ रखने, तो ये किधर होगा? दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, सोचो, दो और एग्जाम्पल देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो निकाल ही लोगे, डायरेक्शन भी देख लो। मान लो कि आपके पास दो प्लेट, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। अब इस बीच में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी हम लोग आगे पता कर लेंगे। इस तरह के केस में अलग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो हम सारे की फॉर्मूला बनाएंगे बाय यूज ऑफ गॉस थ्योरम। तो पहले आप हमको ये बताओ, सीधा हमें डायरेक्शन बताओ। मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, फॉर्मूला सिर्फ हम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। व्हाट इज द डायरेक्शन? टेल मी, व्हाट इज द डायरेक्शन? तो आपने +1 कूलम चार्ज यहाँ पे रखना है, पहले सोचो, सोचना है, रखना नहीं है, सोचना है। +1, इसके कारण क्या होगा? रिपेल होगा इधर की तरफ। इसके कारण क्या होगा? ये माइनस है, ये अट्रैक्ट होगा, तो इसके कारण भी अट्रैक्ट होगा इधर की तरफ। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। ओके, तो आई होप एक और केस देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए। मान लो ये आप सिर्फ लॉजिकल बोल सकते हो। मान लो ये खोखला गोला है, इसको शेल बोलते हैं, शेल खाली है अंदर में, एंड दिस चार्जेज आर गिवन ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ये स्प्रेड। अब इसके बीच में एक पॉइंट आपने ले लिया, आपसे पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यस, कुछ देर के लिए सोच लो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। मान लो 1 कूलम चार्ज हम यहाँ पे रखते हैं, तो इसके कारण क्या होगा? रिपेल होगा। तो इधर भी तो प्लस है, तो इसके कारण क्या होगा? वो उधर जाएगा। फिर उसी तरह सोचो, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस के कारण ये इधर जाएगा, फिर इस प्लस के कारण इधर आएगा। तो कंक्लूजन क्या मिलेगा? तो सिंपल कंक्लूजन ये है कि इस सेल के अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, तो नो क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि इसके कारण ये इधर जाएगा, इसके कारण इधर जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो E इज जीरो हियर। लॉजिकली भी हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि E जीरो होता है, लेकिन अभी आप लॉजिकली समझ सकते हो, क्योंकि जब डायरेक्शन पता करने गए तो आपको कोई डायरेक्शन मिल ही नहीं पा रहा है। तो इट मीन्स व्हाट? देयर इज अ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, नथिंग एग्जिस्ट्स। ओके, सो दिस इज द फैक्ट। एंड फॉर टुडे एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं, इस बात को ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम क्यों ध्यान रखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, हमने सिर्फ एक फार्मूला बताया, 4-5 फार्मूला आपको और पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पर मालूम हो, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर, यहाँ पे हमने Q' चार्ज रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है E। देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है E। एंड अनदर चार्ज Q' इज केप्ट देयर। तो कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रखोगे, ये ध्यान में रखना, इफ ए चार्ज is placed in an electric field, it experiences a force। कोई चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी दूसरे चार्ज के कारण होता होगा, बिना चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसका मतलब दो चार्ज हो गया पहले इनडायरेक्टली,
तो एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, दूसरा चार्ज को हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हैं। तो ए चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्ट्स ऑन इट, फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब जब फोर्स उस पर लगेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द फोर्स? The force acts on the charge F is equal to Q times the strength of electric field. Is okay? जब कोई चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू होगा Q टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन? तो एक चीज हमेशा याद रखना, तो डायरेक्शन होगा, अगर चार्ज आपने पॉजिटिव रखा है तो फोर्स का डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ ए चार्ज if a charge placed is positive, charge placed is positive, then the direction of force is along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में पहले बताया कि कैसे चार्ज में क्या क्या डायरेक्शन होता है। इफ यू प्लेस पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्ट्स on that positive charge is equal to Q times the electric field and its direction is along the direction of electric field. तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो फोर्स उधर लगेगा। And now think opposite. तो इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इफ यू माइट हैव प्लेस्ड नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा? तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट होगा। यानी सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ रख दो, पूछे कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उसके अपोजिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना। ओके, तो ये छोटा सा चीज़ बेसिक्स है, इसको आप पढ़ें और फिर आगे देखें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।